கர்த்தருக்கு முன்பாக என்னையும் நிறுத்தி உயர்த்தி வைத்தவரே நன்றி ஐயா. தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் செய்கிறேன், தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் செய்கிறேன். கிருபை தந்தவரே நன்றி ஐயா. என்னை உயர்த்தி வைத்தவரே நன்றி ஐயா. இந்த கிருபை மட்டும் இல்லைனா வேஸ்ட், இந்த தயவு மட்டும் இல்லைனா வேஸ்ட், இந்த கிருபை மட்டும் இல்லைனா வேஸ்ட், இந்த தயவு மட்டும் இல்லைனா வேஸ்ட். பெருமையாக வாழ்கின்ற என்னையும் தேடி வந்தவரே நன்றி ஐயா. பெருமையாக வாழ்கின்ற என்னையும் தேடி வந்தவரே நன்றி ஐயா. கண்ணீரை தொடச்சிடுங்க, காயங்களாற்றிடுங்க, கண்ணீரை தொடச்சிடுங்க, காயங்களாற்றிடுங்க. சேற்று கொண்டவரே நன்றி ஐயா. அனைத்து கொண்டவரே நன்றி ஐயா. உங்க கிருபை மட்டும் இல்லைனா வேஸ்ட், உங்க தயவு மட்டும் இல்லைனா வேஸ்ட், உங்க கிருபை மட்டும் இல்லைனா வேஸ்ட், உங்க தயவு மட்டும் இல்லைனா வேஸ்ட். சொத்து சுகம் இருந்தாலும் வீடுகளும் இருந்தாலும் கிருபை மட்டும் இல்லைனா வேஸ்ட், உங்க தயவு மட்டும் இல்லைனா வேஸ்ட். हालेलुया। 2 कोरिन्थियर 5 अधिकारम, दूसरा कोरिन्थियो 5वां अध्याय 14 से 21 वரை வாசிப்போம். 14 से लेके 24 तक पढ़ेंगे. இப்படி ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான், பழையவர்கள் ஒழித்துக் கொண்டு எல்லாம் புதிதாயின. இவையில்லாமல் தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது, அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு நம்மோடு ஒப்புரவாக்கி ஒவ்வொரு வாக்குகளின் ஊழியத்தை எங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுத்தார். அதன் நேரில் தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களை தமக்கு ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார். ஆனவனினாலே தேவனானவர் எங்களை கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறது போல நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக தானாதிபதிகளாக இருந்து தேவனுடைய ஒப்புரவாக்குங்கள் என்று கிறிஸ்துவிடம் உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியை அறிந்தபடி பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். हालेलुया। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बीत गई परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप कर लिया सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार के मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हम उसमें होकर परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए। कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। धार्मिकता बन जाए। हमें बोलेंगे धार्मिकता बन जाए। हमें बोलेंगे धार्मिकता बन जाए। आमीन। धार्मिकता बन जाएगी। इतना आमीन बोलेंगे। इतना आमीन। अपोस्टल कतरे पच्चीस नाम महिमा पड़ा प्रेज जी नाम महिमा पड़ा प्रभु का नाम महिमा हो। यीशु नाम में बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बधाई देते हैं। प्रभु का अनुग्रह और दया आपका साथ हमेशा रहेगा। हमें बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
கவனமா கேளுங்க கர்த்தருடைய வார்த்தை ध्यान से सुनेंगे प्रभु का वचन है அவர் ஜீவன் உள்ளது वो जीवन है அமேன் பண்ணுங்க आमेन அந்த வார்த்தை ஆவியாக ஜீவனமா இருக்கிறது वो वचन में आत्मा और जीवन है அந்த வார்த்தை நம்ம உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தையாக இருக்கிறது वो वचन हमें जीव उठा लेता है ஜில்லாத்தா जिलाता है அமேன் பண்ணுங்க आमेन Praise the Lord. அந்த வார்த்தை நம்ம நடப்பிக்கிறது நம்ம ஆசீர்வதிக்கிறது எல்லாவற்றையும் அந்த வார்த்தை वो वचन हमें आशीष करता है हमें लेके जाता है मार्ग पे लेके जाता है அமேன் பண்ணுங்க आमेन அந்த நல்லவர் அமேன் பண்ணுங்க प्रभु भला है அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது उसका अनुग्रह हमेशा के लिए கிறிஸ்துவுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி இருக்கிறது प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें निकट लेके आता है Hallelujah. இப்போது அந்த 14 வாசிப்போம். 14 वचन पढ़ेंगे क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, கிறிஸ்துடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, ஏனென்றால் எல்லாருக்காக ஒருவரே மரித்திருக்க எல்லோரும் மரித்தார்கள் என்றும் Hallelujah. எத்தனை அமேன் சொன்னீங்க Hallelujah. ஆமென் அப்போஸ்தலர் பவுல் இருந்த நிலைமை நமக்கு தெரியும் प्रभु அவர் पौल சவுலாக का- அவர் எப்படி இருந்தாருன்னு தெரியும் प्रभु पौल प्रभु का दास पौल को हम जानता है वो प्रभु में आने के पहले कैसा था उसको भी जानता है और प्रभु में आने के बाद कैसा था वो भी जानता है அமேன் பண்ணுங்க आमेन Hallelujah. हालेलुया எப்பொழுது சவுல் பவுலா மாறினாரோ जब साउल पौल बन गया அவர் வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு பெரிய மாற்றம் उसके जिंदगी में कितना बदलाव है Hallelujah. हालेलुया இயேசுவை முகமுகமா தரிசித்தார் यीशु मसीह को आमने सामने मुलाकात में किया அவருடைய தரிசனத்தை கண்டார் उसका दर्शन को देखा அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டார் उसका वचन को सुना வாழ்க்கை மாறியது उसका जिंदगी बदल गया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया சவுல் பவுலா மாறிட்டார் साउल ने पौल बन गया அமேன் பண்ணுங்க आमेन பவுல் புரிந்து கேவலமே என்ன தெரியுமா சின்னது சிறியவன் पौल बोलेंगे तो छोटा व्यक्ति Hallelujah. हालेलुया அவர் சொல்றாரு वो बता रहे हैं எல்லா அப்போஸ்தலர்களும் सारा प्रेरित से நான் ரொம்ப சின்னவன் सबसे छोटा हूँ Hallelujah. என்ன அருமையான வார்த்தை பார்த்தீங்களா कितना अच्छे से शब्द देखा क्या बोलता है எல்லாரும் நான் சின்னவன் सबसे मैं छोटा हूँ करके बता रहा है எல்லாரும் மேம்படுத்தினார் बाकी सबको ऊंचा में रखा ஆனா என்ன வார்த்தை சொல்றாரு लेकिन और एक शब्द बताया है நான் அவர்களை விட அதிக பிரயாசப்பட்டவன் लेकिन बाकी लोग से भी बहुत प्रयास उठाया था मैंने अधिक प्रयास उठाया Hallelujah. Amen. அந்த சவுல் சொல்றாரு वो पौल कहता है கிறிஸ்துவுடைய அன்பு प्रभु मसीह का प्रेम எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது हमें विवश कर देता है, विवश कर देता है नरके विवश விவஸ் விவஸ் என்ன தெரியுமா அந்த அன்புல அப்படியே மயங்கி அப்படியே உண்டு नजदीक में लेकर आया। नजदीक है, அந்த அன்புல மயக்க அப்படியே अच्छा प्रभु का प्रेम में ऐसे चक्कर आ गया उसको विवश வேதம் சொல்லுது, அந்த அன்புல மயங்கி இருக்கிறது, वो மயங்கி இருக்கிறது. होश में नहीं था उसका प्रेम में ऐसा गिर पड़ा Hallelujah. நெருக்கி ஏவுகிறது प्रभु का प्रेम उतना सा उसको दबा रहा है Hallelujah. हालेलुया அதான் முதல்ல ஒருத்தர் பின்னால இருந்து நம்ம இப்படி கூப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படி புஷ் பண்ணிட்டே இருக்க முன்னால அப்படி अगर कोई व्यक्ति पीछे से हमको ऐसा धक्का मार के लेके जा रहा है वैसा हम बूस को भी जाता है वैसा प्रभु का प्रेम कर कर एक बूस रहे हैं और वो बूस उसको लेके जाता है हालेलुया விவஸ் कर देता उसको हालेलुया प्रभु का प्रेम खींच के लेके आता है विवश कर देता है. विवश कर देता है Hallelujah. அந்த அன்பில் அப்படி நெருக்கப்பட்டு இதாவது பண்ணணுமே என்கிற அந்த எனக்கு அந்த நெருக்கம் प्रभु हमारा ऐसे का व्यक्ति को कितना प्रेम किया करके उसको जानकर उसका प्रेम में प्रभु के लिए कुछ करने के लिए भागा Amen. Hallelujah. हालेलुया ஏனென்றால் क्योंकि இந்த அன்பு எப்படி ஏவுகிறதா ये प्रेम कैसा मुझे विवश करता है Hallelujah. எப்படி அது ஏவுகிறதா कैसा विवश करता है எல்லாருக்காக ஒருவர் மறித்திருக்க दुनिया का हर एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति मरा था எல்லாரும் மறித்தார்கள் என்றும் सब लोग मर गया ऐसा करके பிழைத்திருக்கிறவர்கள் जो जिंदा हुआ है वो लोग बोल रहे हैं இனி தங்களுக்கு என்று பிழைத்திராமல் अभी मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा தங்களுக்காக हमारे लिए மறித்து பிழைத்தவருக்காக எழுந்திருக்கும்படி मरकर फिर से சிந்தா விட்டா जिंदा उठा जीवित खुदा प्रवेश करके அந்த जिंदा ஆண்டவருக்கென்று நாம் நிதானிக்கிறோம் அவர் பிழைத்திருக்கிறார் என்று उस मसीह के लिए हमको जीना कर कर हम गवाही के रूप में जी रहे हैं 15 वचन पढ़ेंगे பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனி தங்களுக்கென்று பிழைத்திராமல் தங்களுக்காக மறித்து எழுந்திருக்கிறார் என்று எழுந்திருக்கிறவர்கள் பிழைத்திருக்கும்படி அவர் எல்லாருக்காக மறித்தார் என்று நிதானிக்கிறோம். Amen. Hallelujah. எப்படியா
பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனி தங்களுக்கென்று பிழைத்திராமல் अभी जो जिंदा है वो अपना खुद के लिए जिंदा नहीं होना चाहिए, हमारे लिए जो मरा था, हमारे लिए जो जीवित उठा था, उसके लिए हम जिंदा रहने के लिए वो सबके लिए मरा कर நமக்காக நாம் இனி பிழைத்திருக்காமல் हमारे लिए हम जिंदा नहीं रहना चाहिए, நமக்காக மரணம் அடைந்து हमारे लिए मरकर உயிர் தெழுந்ததற்காக जीवित उठा परमेश्वर के लिए பிழைத்திருக்கும்படி हम जिंदा रहने के लिए அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். बुलाया गया। हालेलुया, அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். हम किसके लिए बुलाया गया? हालेलुया. நாம் இனி நமக்காக பிழைக்காம நமக்காக மரித்தவர் பிழைத்திருக்கிறாரு, அவருக்காக நாம் இருக்க போறோம். ஆமென் சொல்லுங்க. हमारे लिए मरकर जीवित उठा प्रभु परमेश्वर के लिए हम जिंदा रहना चाहिए। हालेलुया. இந்த வாழ்க்கையில இந்த நோக்கங்கள் இருந்தாலே கர்த்தர் பெரிய காரியம் வாழ்க்கையில் செய்வார். हमारा जिंदगी में ये लक्ष्य रहेगा तो हमारा बड़ा कार्य हमारे द्वारा प्रभु करेगा। ஆனால் நம்ம அப்படி இல்லைன்னா இந்த நாளிலே நம்ம மறுபரிசீலனை செய்யும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். अगर हम ऐसा प्रभु का प्रेम में नहीं है, जिंदा अपना खुद के लिए है, तो हम जान के देखेंगे इस समय में हम मन फिरना चाहिए। हालेलुया. हालेलुया, அருமையான வார்த்தை, मन फिरना चाहिए. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। நாம் வர்றோம், வார்த்தையை கேட்கிறோம், போயிட்டே இருக்கிறோம். நமக்கு என்ன ஒரு மாற்றம் இருக்குங்கிறது நமக்கு தான் தெரியும். हम आकर ऐसा ही जाने के लिए नहीं आया, प्रभु का प्रेम में बनकर हम प्रभु के लिए जीने के लिए इधर मन फिरना चाहिए। हालेलुया. हालेलुया। आपने வார்த்தை நமக்கு எவ்வளவாய அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்குது. प्रभु का शब्द हमारे अंदर कितना बड़ा बदलाव लेके आया। எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் நான் மாறி இருக்கேன்? कितना लोग बोल सकते हैं हम बदल गया करके? हालेलुया. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் நான் மாறி இருக்கேன்? कितना लोग बोल सकते हैं हम बदल गए? வேதம் சொல்லுகிறது, शास्त्र कहता है हालेलुया, நாம் இந்த நமக்கென்று பிழைத்திராமல் நமக்காக ஒரு மரித்தாரே, அவர் மீண்டும் உயிரோடு இருந்தார், அவருக்காக நாம் பிழைத்திருக்க முடியாத நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். हमारे लिए एक व्यक्ति आया था, उसने मरा और मेरे लिए जिंदा हुआ और मेरे लिए अभी भी जीवित खुदा है और उसके लिए हम जीना चाहिए करके कितना हमें बोले। हालेलुया. நமக்காக தான் வாழ்ந்தோம், நமக்காக தான் சாப்பிடுறோம், எல்லாம் நமக்காக தான் போறாங்க, நமக்காக ஒரு எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கிறார். அவர் என்னைக்கு நம்ம நினைச்சோம் हमारे ऊपर आने वाला सारा मरण यीशु मसीह उठा लिया, उसके लिए जीने के लिए कितना निर्णय लिया। हालेलुया. हालेलुया. நமக்காக தான் வாழ்றோம், நமக்காக தான் சாப்பிடுறோம், எல்லாமே நமக்குண்டே இருக்கிறோம். ஆனா அவர் என்னைக்கு நாம பாக்குறோம்? अभी भी हम हमारे लिए दुनिया के लिए जिएगा तो और प्रभु के लिए कभी जिएगा। हालेलुया. हालेलुया. வர 2 மணி நேரம் கூட நம்ம இருக்க முடியல, போயிடுறோம். इधर आके 1 घंटा 2 घंटा भी रुक नहीं सकते हैं, हम चला जाता है। அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? என்னோட வாழ்க்கை பழைய அதே மாதிரிதான். हमारा जिंदगी में फिर से वही कार्य हो रहा है। हालेलुया. हालेलुया. சொல்லுகிறது அவருடைய அன்பு நெருக்கி ஏவுகிறதா. शास्त्र कहता है उसका प्रेम हमें விவஷ் कर देता है। அப்போ அந்த அன்பு நமக்குள்ள இருக்கும்போது அந்த அன்புல நம்ம எப்படி இருக்கணுமோ, वो प्रेम हमारा अंदर रहेगा तो हमारा प्रेम हमारा आगे चला जाएगा। நாம் அப்படி அன்புல தான் நிலைத்திருக்க வேண்டும். हम भी उस प्रेम में जाना चाहिए। அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறவன் தேவனை நிலைத்திருக்கிறான். प्रभु का प्रेम में जो स्थिर हुआ है वो प्रभु में स्थिर हुआ है। हालेलुया. 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 அந்த அன்பில ஒண்ணு இல்ல, अगर वो प्रेम हमारे पास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। கிருபையில ஒண்ணு இல்ல, वो अनुग्रह में तो कुछ भी नहीं है। அவன் எல்லாருக்காக மரித்தார் வேதம் वो சொல்லுகிறது. सबके लिए मरा था करके साथ இயேசு கிறிஸ்து எல்லாருக்காக மரித்தார். यीशु मसीह सबके लिए मरा था। हालेलुया. हालेलुया. அப்ப நான் என்ன செய்யணும்? நான் எனக்காக அவர் மரித்தார் என்று நான் விசுவாசிக்கும் போது அந்த விசுவாசம் என்ன ரட்சிப்புகளை நடக்கும். हम हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मरा था करके हम विश्वास करने के समय उस विश्वास हमें उद्धार में लेके आता है। हालेलुया. रोमन की किताब रोमन का किताब 10वां अधिकार में 10वां अध्याय में 9-10. 9-10 हालेलुया. என்னவென்றால் கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினால் அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மரித்தோரில் எழுப்பினார் உன் இதயத்திலே விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய். விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய். இதயத்திலே விசுவாசிக்கப்படும் ரட்சிப்பு உண்டாக வாயினாலே அறிக்கை பண்ணப்படும். आमेन. कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है. हालेलुया. 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 நீர் உண்டாக இருந்ததில் விசுவாசிக்கப்படும், ரட்சிக்கப்பட வாயிலே அறிக்கை செய்யப்படும். நீ ரட்சித்ததை வாயிலே அறிக்கை செய். என்ன ரட்சித்தார் 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 இயேசு ரட்சித்தார்னு சொல்லலனா हालेलुया சத்துரு சிரிப்பான். अगर हम उस उद्धार को पाया रहेगा तो हमारा मुंह से कबूल करना चाहिए यीशु मसीह पापों से सापों से मुझे छुटकारा दिया कर हम सुसमाचार से बताते रहेगा तो वो विश्वास में बढ़ते रहेगा। हालेलुया. प्रभु का नाम महिमा होगा। அப்படி நான் பண்ணலனா, अगर हम नहीं किया तो हालेलुया. நேற்று ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஃபோன் பண்ண அவருக்கு நான் சொன்னேன், कल भी मेरा एक मित्र फोन किया था, मैं उसको बताया ஸ்கூல் மேட் स्कूल का पढ़ाई में साथ भी था। நான் பார்க்கவே இல்லை 30-40 வருஷம் ஆகுது. 30-40 साल में हम लोग एक दूसरे को मिला नहीं था। हालेलुया. हालेलुया.
இப்படி சில நேரம் அவன் ஸ்கூலுக்கு அப்படி பேசிட்டு போனாச்சுன்னு நான் வந்து ஆணுடைய கிருபையில இப்படி வந்துட்டேன்ப்பா அப்படின்னு. ஹalleluya. ऐसा कोई ऐसा मिल जाता है उसके पास हम ये बोलना चाहिए मैं अभी मसीह में है, मसीह के बारे में बोलना चाहिए. ஹalleluya. हालेलुया. அவன் சொல்லுங்க அவனுக்கு ரெண்டு வார்த்தை சொன்னேன். அவன் ஒரு வார்த்தை என்ன சொன்னா மேனா அப்படிதான் நான் சொன்னேன். ஒரு ரெண்டு சொன்னான். இந்த வார்த்தைகளை அங்க கிரியை செய்யும். அவன் சொல்லுங்க அவனோட வார்த்தை அவனுக்கு கிரியை செய்யும். அதனால அவனை நாம மகிமைக்குன்னு சொல்றேன். மேனா कभी कभी पीता हूँ. हमें ठीक है कभी इस बात पे पी लेता हूँ. हालेलुया. एक माद குடிப்பேன், ஒரு சந்தோஷமா குடிப்பேன். कभी न्यू ईयर आता है ये आता है वो आता है पी लेता हूँ. एक माद நான் வந்து குட் நியூ இயர் வருது ऐसा नहीं कि मैं रोज कभी कभार நான் எப்பவும் குடிக்க மாட்டேன், எப்பமாவது குடிப்பேன்னு சொல்லிட்டு அவனை தமிழ் தகராறு பார்த்துருக்கேன். அவனுக்கு उसको तमिल बात करने में तकलीफ है. ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது இல்லாதான் இருக்கும். स्कूल में पढ़ने के समय भी हिंदी में बात कर रहा था. हालेलुया. நான் சொன்னேன் உனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ்ல பேசி எனக்கு புரியும் அப்படின்னு. मैंने कहा तुमको जितना तमिल मालूम उतना बताओ, मैं भी बताता करके बोला. அப்போ இதுல இப்ப நான் சொன்னேன் एक बात करता हूँ. मैं प्रभु का நான் வந்து ஒரு சாட்சி சொன்னேன். என்னுடைய சாட்சி சொல்லிட்டு बड़े बच्चन बहुत अच्छा गवाही ऐसा है உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சாட்சி தான். அதை நான் சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் இப்படி இருக்கும்போது என்ன தெரியுமா கர்த்தர் என்ன விடுவிச்சார் பாருங்க. அவனுடைய வாக்கு என்ன சொல்ல தெரியுமா पहला कुरिन्थियों 3 अधिकार में 16 व 17 वचन क्या लिखता है तुम ही हो प्रभु का मंदिर. हालेलुया. क्या तुम नहीं जानते हो तुम प्रभु का मंदिर हो, प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है. ये तुम नहीं जानते हो. अगर प्रभु का मंदिर को कोई खराब करेगा तो प्रभु उसको खराब करेगा. तुम ही हो मंदिर, वो पवित्र है. அது வார்த்தை கேட்டோம் ஆடி போனோம். हालेलुया. हालेलुया. कभी कभार नहीं हमें बोलेंगे, कभी कभार बोल के बहुत लोग बोलते हैं कभी कभार नहीं तो कभी कभार बोलते, लेकिन वो शरीर के अंदर ही जाता है ना. मैं बोला शरीर के अंदर ही जाता है, वो खराब करता है. प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास है करके प्रभु का वचन कहता है. अगर तू यदि तुम भरोसा करेगा तो मैं बोला प्रभु का वचन कहता है हम प्रभु का मंदिर है, हमारा आत्मा जो हमारा अंदर निवास करता है. लेकिन ये मंदिर खराब नहीं करने का, दारू पी के नशे के पदार्थ ये खा पी के नहीं करने का. प्रभु ने एक बार छुटकारा दे दिया, सब निकल गया. तो मैं बोला हालेलुया. वचन வந்துச்சு बदला वचन. इसलिए यदि कोई मसीह के अंदर है तो एक नया सिर से जूनी बातें निकल गई, सब नहीं हो गई. आमीन. हालेलुया. बोला பிரின்சன் நல்ல ரெண்டு மூணு வார்த்தை நல்லா அருமையா சொன்னா பாத்துக்க அப்படின்னா ஒருவர் எல்லாருக்காக மரித்திருக்காங்க. இனி பிழைத்திருக்கிற அவரால் பிழைத்திருக்கிறவர்கள் நமக்கென்று இல்ல. நீங்க உங்களுக்காக பிழைக்காண்டா, நான் எனக்காக பிழைக்காண்டா, நீங்க உங்களுக்காக பிழைக்காண்டா, நாம யாருக்காக அவருக்கென்று பிழைத்திருக்கணும். हम इसके लिए भी नहीं जीना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना चाहिए. हालेलुया. ஏனென்றால் எல்லாருக்காக மரித்தார் வேதம் சொல்லுது. क्योंकि सारा लोग के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा था. हालेलुया. हालेलुया. அப்ப நாம் எதற்காக பிழைத்திருக்கணுமா? हम क्यों जिंदा रहना चाहिए? அவருக்கென்று பிழைத்திருக்கணும். उसके लिए गवाही के लिए. அவருடைய வருகையில் அந்த 3 சத்தங்களை கேட்க நம்ம காதுகள் ரெடியா இருக்கணும். उसका आगे में आवाज सुनने के 3 आवाज, तीर का आवाज सुनने के लिए हमारा काने खुलना चाहिए. கர்த்ததாவே ஆரவாரத்தோடும் அந்த சத்தம், தேவ எக்காலத்தோடும் சத்தம், பிரதான தூதனோட சத்தம், 3 சத்தங்கள் நம்ம காத கேட்கணும். हालेलुया. प्रभु का आगमन में प्रभु का जो आवाज है, हालेलुया. मेरे बच्चे मेरे पास अभी आने वाले करके बाप कितना उत्साही से आवाज करता है, वो आवाज. हालेलुया. और दुनिया की आवाज, हालेलुया, देवदूत की आवाज. 3 आवाज को सुनने के लिए हर रोज प्रार्थना करो. தங்களுக்கென்று பிழைத்திராமல் जो जिंदा है बचा हुआ है वो यीशु मसीह के लिए जीना है, हमारे लिए नहीं. தங்களுக்காக மரித்து எழுந்தவர்க்கென்று பிழைத்திருக்கும்படி, मेरे लिए मरकर जीव उठा खुदा यीशु அவருக்காக பிழைத்திருக்கும்படி, उसके लिए हम बच के रहना चाहिए. அவர் எல்லாருக்காகவும் वो सबके लिए மரித்தார் என்று நிதானிக்கிறோமே. मरा हुआ कर हम जांचते இந்த देखते हैं. வீட்டுல போய் आराम से इस अधिकार को गर्भ में आराम से पढ़ कर देखो, बहुत बड़ा अंदर காலில் சிறக்கும் போது கத்திரத்தில் தாங்கியது. कितना समय में हम फिसल पड़ा, तभी प्रभु का हाथ हमें थाम रहा था. திரும்பினா எல்லாம் வேஸ்ட். उसका आने वाले तो सब कुछ वेस्ट है. हमें बोलेंगे हालेलुया. 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 நிறைய பேர் பணம் இருக்கு, காசு இருக்கு, உங்களுக்கு சாப்பிட முடியாது. बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, खाना है, लेकिन खाना नहीं खा सकता है. हालेलुया. हालेलुया. தூக்கம் வராது. किसको नींद नहीं आता है. இன்னும் எப்படி பணத்தை பெருக்கலாம், और क्या करूं, कितना बड़ा बढ़ोतरी करूं करके எப்படி சட்டத்தை மாத்தலாம். कैसा कानून को बदल सकता है करके देख रहे हैं. हालेलुया. हालेलुया. हमें हमें உலகம் அப்படிதான் ஓடும். दुनिया ऐसे भागेगा. हमें சொல்லுங்க. हमें हमें என்ன சொல்ல தெரியுமா? लेकिन हम कैसा बोलना चाहिए? ஆண்டவரே
கிருபையினால ஒண்ணுமே இல்லை. आपका अनुग्रह नहीं तो कुछ भी नहीं है ஆமென் ஹல்லேலூயா. போல மாட்டாது நான் வாழ்ந்தது உங்க கிருபை, நான் வளர்ந்தது உங்க கிருபை நான் வாழ்ந்தது உங்க கிருபை, நான் வளர்ந்தது உங்க கிருபை என்னை உயர்த்தி வைத்து உங்க கிருபையே. கிருபை வேண்டுமே உங்க கிருபை போதுமே உங்க கிருபை இல்லாத நான் ஒன்றும் இல்லையே இயேசுவே வாய்ந்தது சொல்லுங்கள். பிதாவே, உங்க கிருபை आप अनुग्रह चाहिए உங்க கிருபை आपका கிருபை काफी है உங்க கிருபை आपका कृपा अनुग्रह नहीं तो कुछ भी नहीं ஒன்றும் இல்லையே இயேசுவே तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरा अनुग्रह काफी है तेरे अनुग्रह नहीं तो मैं कुछ भी नहीं है. இயேசுவே நான் என்று சொல்ல எனக்கென்றும் இல்லை என்று சொல்ல என்னிடம் ஒன்றும் இல்லை நான் என்று சொல்ல हम करके बोलेंगे எனக்கு हमारा तो कुछ नहीं है मेरा बुद्धि दिमाग करके बोलेंगे मेरा तो कुछ नहीं है கதறியெல்லாம் என்னை உயர்த்தி வைத்ததற்கு யோகியதனை हमें ऊंचा किया தகுதியில்லா என்னை உயர்த்தி உங்க கிருபை உங்க கிருபை இல்லாமல் நானும் இல்லை உங்க கிருபை இல்லாமல் நானும் இல்லை உங்க கிருபை வேண்டுமே உங்க கிருபை போதுமே உங்க கிருபை இல்லாமல் நான் ஒன்றும் இல்லையே இயேசுவே தனிமையில் உழுத போது பேச்சிட யாரும் இல்லை தள்ளாடி நடந்த போது தாங்கிட யாரும் இல்லை தனிமையில் உழுத போது பேச்சிட யாரும் இல்லை தள்ளாடி நடந்த போது தாங்கிட யாரும் இல்லை கதறி அழுத நேரம் என் கண்ணீருடைய கிருபை கதறி அழுத நேரம் என் கண்ணீருடைய கிருபை உங்க கிருபை இல்லை நானும் இல்லை உங்க கிருபை இல்லை நானும் இல்லை கிருபை வேண்டுமே உங்க கிருபை போதுமே உங்க கிருபை இல்லாமல் நான் ஒன்றும் இல்லையே இயேசுவே நமக்கு அந்த நெருக்கியவுமே ஆகட்டும். वो प्रेम हमें विवेश करना चाहिए लेकिन नहीं எதிர்கால சொல்லிங்க அந்த அன்பை நெருக்கி ஏவணும். वो प्रेम हमें विवेश करना चाहिए ஹல்லேலூயா. அந்த நெருக்கி ஏவும் போது நான் புது சிருஷ்டியாக மாற முடியும். जब वो प्रेम हमें विवेश करेगा तभी वो परमेश्वर के रीति हम चल पाएंगे नया सृष्टि बनेगी ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நய சிருஷ்டியை நான் வாசனை போயிட்டே இருக்க புது சிருஷ்டி வாசனை போயிட்டே இருக்கக்கூடாது. नया सृष्टि केवल पढ़ते ही नहीं रहना चाहिए ஹல்லேலூயா. அந்த வார்த்தை எனக்குள்ள கிரியை செய்யணும். वो वचन मेरे अंदर क्रिया करना चाहिए ஹல்லேலூயா. आमेन। ஆமென் சொல்லுங்க. आमेन। புது சிருஷ்டினா எல்லாமே மாறிடுது. नया सृष्टि मतलब सब कुछ बदल देता है। ஹல்லேலூயா. அது மாறுதாங்க ஒரே அடியா ஒரே நாளா மாறாது, அது மாறிக்கொண்டே இருக்கும். जब वो बदलता है एक ही दिन में सब नहीं बदलता है थोड़ा थोड़ा करके बदलता ही रहता है ஹல்லேலூயா. ஆமென் போறீங்க. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய வாழ்க்கை மற்றவர்களுக்கு எப்படி இருக்குமா हमारे தெரியணும். இவங்க ஆர்டர் பிள்ளைன்னு சொல்லணும். दूसरे लोग जब देखते हैं तो बोलना चाहिए परमेश्वर का बच्चा है करके। ஆனாலும் நமக்கு இந்த சில இடத்துல கோபம் இடத்துல எல்லாம் வரதான் फिर செய்யும். भी हमें कोई जगह में क्रोध आती है और गुस्सा आता है आता है ना बहुत आता है लेकिन आता है वैसे चला जाता है. कितना लोग बोलते हैं गुस्सा आता है ना सबको आता है. वो प्रभु ने दिया हुआ एक ये है फीलिंग है एक
क्या बोलते हैं वो एहसास है, लेकिन उसे अंदर से रखने का। हाँ, पाप मत करो, सूरज अस्त होने से पहले तुम मेल मिलाप हो जाओ। हालेलुया बोलेंगे। सूर्य अस्तमனக்கு முன்பாக நீங்க எல்லாரும் ஒப்புரவாகிறீங்க। हालेलुया। அதான் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிற ஆலோசனை। ये परमेश्वर हमको देने वाला हालेलुया। हमें बोलेंगे क्रोध आता है, सबको आता है, हमें बोलेंगे लेकिन उसमें पाप मत करो, पाप मत करो, घर में बात करो। हालेलुया। எல்லாத்தையும் மாற்றுவாங்க। तो सब कुछ बदलेगा। இந்த வார்த்தை அடிக்கடி, அதாவது இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால், अगर मसीह में एक है तो क्या है, नया सृष्टि है। नया सृष्टि क्या करेगा, प्रभु के लिए जिएगा। हालेलुया। क्योंकि पुराने सब चला गया ना, उसे दोहराया करेगा तो तुम नया बनाए नहीं। हालेलुया। இன்னும் முன்முந்துட்டு எனக்கு ஆர்டர் இதை பண்ணல அதை பண்ணல எல்லா நேரத்தும் பண்ணுவாங்க। हमें ऐसा गुड़गुड़ा रहेगा, क्या करेगा, देखो सुनो, गुड़गुड़ा रहेगा, ये करते रहेगा, समय पर प्रभु करेगा। तुम्हारा गुड़गुड़ा मुड़मुड़े और पंद्रह चली फिर भाई। हालेलुया। हमें गुड़गुड़ाते रहेगा तो करने के लिए आएगा, ये गुड़गुड़ाती रहती है, कभी भी मैं अच्छा करने के लिए आता है तो ये गुड़गुड़ाती रहती है, ठीक है उसको बंद करने दो, बाद में मैं क्रिया करूंगा। हालेलुया। आप अपने लेते जाते हैं नाम मुड़े हो, हमें அப்பா जी ऐसा बोलेगा तो बेटे का हालत क्या होगा मालूम है क्या? அதனாலதான் எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள்। इसीलिए सारी चीजों में आप स्तुति करो। हालेलुया। எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள்। सारी चीजों में स्तुति करो। இப்படி செய்வதை கிறிஸ்து இயேசுக்குள் உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமா இருக்கிறது। करना ही प्रभु यीशु मसीह का योजना है, सिद्ध है। यीशु मसीह का सिद्ध है। यीशु मसीह का सिद्ध है। हालेलुया। அப்ப என்ன செய்யணும்? क्या करना நான் चाहिए? புது சிருஷ்டி நீ சொல்றதுல ஒன்னும் பெருசு இல்ல, புது சிருஷ்டியாகவே பாருங்க। नया सृष्टि बोलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, नया सृष्टि बनना चाहिए। அவன் बोलेंगे எல்லா எண்ணங்களும் மாறிடும்। सारे जो सोच विचार बदल जाएगा। हालेलुया। அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சில எல்லா அந்த இடத்துலங்க ஒட்டுதல் இல்லாம எல்லாம் மேல்மேலா போய் जाएगा, ऊपरवाई। भाई बहन के बीच में अगर कोई झगड़ा या फिर அதான் சொல்ல ஒப்புரவாக்குதல் ஊழியர் எனக்கு தந்திருக்காருப்பா, அதனால நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், நீங்கள் அப்படியே இருங்க। मेल मिलाप करने वाली सेवा मुझे दिया है, तो आप भी वैसे ही रहो। हालेलुया। मेल मिलाप में रहो। हालेलुया। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? ஒப்புரவாக்குதல் ஊழியர் எங்களுக்கு தந்தனால நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், நீங்கள் ஒப்புரவாக்குதலே இருங்க। मेल मिलाप की सेवा मुझे दिया है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप मेल मिलाप ही रहो। हालेलुया। இப்படி இருந்தாதான் புது சிருஷ்டியா மாற முடியும்। ऐसे जब रहोगे तभी नया सृष्टि होगी। हालेलुया। बहन काय पण बोलू दे, भाऊ काल पण बोलू दे, आपण ऐकायचं, आपण सोडून द्यायचे। हालेलुया। हालेलुया। याच्या मध्ये राहणार तर असंच होणार, तो आपल्याला अवघडपती चालवणार, या सर्व करणार, पण आपण बोलत प्रभू तुमची स्तुती हो, याला पण मी प्रार्थना करतो, हे पण तुम्हाला उजाड करा प्रभू, याला पण सजा का तुम्हीच आहे। हालेलुया। आपण फक्त प्रभूला प्रार्थना करायची, प्रभू बघून घे ಅವ್ರು பார்த்துக்கொள்வார்। हालेलुया। ಅವ್ರು சொல்வாரு, அவன் தீ கொடுத்துனா அதை கும்பிட்டா உனக்கு என்ன, நீ அவங்க ஜோம் பண்ணியான்னு கேட்பாரு। हालेलुया। हमें पूजा करता है, ये करता है, बोलते समय प्रभु पूछेगा तो उसके लिए प्रार्थना किया है क्या करके पूछेगा। हालेलुया। काय पण राहू दे ना, तू भजन पडतो ना, बोलायचे प्रभू तुला प्रेम करतो। हालेलुया। 2-3 दिवस पहिले काय ऐकणार नाही, कोणी पण नाही ऐकणार, पण काय बोलायचं आपण त्याला कानामध्ये बोलायचे, प्रभू तुला प्रेम करतो, तुला प्रेम करतो। 10 दिवस बोला, 11 दिवस तुम्ही बोला, प्रभू मला प्रेम करतो। हालेलुया। प्रभू मला प्रेम करतो। हा पण कसा? हालेलुया। तू बोलतो हा वचन माझ्या हृदयामध्ये क्रिया केलाय, कार्य केलंय। हालेलुया। म्हणून प्रभू बोलतो मेल मिलाप सर्वांना होऊ दे। हालेलुया। आपल्या घरी जाऊन हा अधिकार वाचा, प्रभू तुमच्या जीवनामध्ये मोठे कार्य करणार। हालेलुया। हालेलुया। பாவ மரியாதை அவரை நமக்காக பாவம் ஆக்கின வார்த்தை ஒவ்வொரு உள்ளத்துல இறங்கணும் இன்னைக்கு। ஆமென் சொல்லுங்க। हमारे कारण पाप बना। हालेलुया। हमें जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा कि हम उसमें होकर परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। नाम क्रिस्तुकुल्ले हम मसीह हैं। हालेलुया। नाम దేవుని నీతియాగపడికి परमेश्वर के धार्मिकता बनने के लिए पाव मर्यादा ಅವರೇ पाप के अनजान था उन्हें हमारे पाप हमारे लिए पाप बना। सब
के खड़े हो जाएंगे நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது நேரம் और बोलने की बहुत है लेकिन समय नहीं है। நேரத்தில் ஆண்டவர் சன்னிதி வாருங்க समय में प्रभु की सन्निधान में आओ, நேரத்தோடு முடிப்போம் समय में खत्म करेंगे, நல்லதாக நல்லதா இருக்கும் सभी के लिए अच्छा கொஞ்சம் होगा। அப்படியே கண்ணீர் மூடி एक क्षण हम हाथ बंद करके हालेलुया। இந்த நல்ல வரமட்சி நம்ம எல்லாரும் प्रभु भला है, आमेन करेंगे। இத்தனை சொல்றீங்க ஆண்டவரோட பேசினாரு आमेन कहते हैं, परमेश्वर मेरे से बात किया जाए। இதுல இருந்து ஒரு ஆவணம் சொல்லுவோம் धन्यवाद के हृदय से उनको Praise the Lord, Daddy. बताएंगे। Praise the Lord। ஹalleluya நாம மகிமைக்கு நாங்கள் வருகிறோம் ஆண்டவரே नाम की महिमा के लिए हम ஹalleluya thank you Jesus ஹalleluya ஒருவன் கிறிஸ்துவின் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் एक जो मसीहा में है तो वो नया सृष्टि बनेगा। எல்லாம் புதிதாயிடும் सारी चीज எல்லாம் பழைய எல்லாம் ஒழித்து போய் सारी चीज नया शुरू होगा। எல்லாம் புதிதாயிடும் सारी चीज नया हो जाएगा। எல்லாம் புதிதாயிடும் सारी चीज सब नया हो गया कितने लोग आपने बोले सब नया होना है सब नया होना है सोच विचार नया तौर तरीके बातें चाल चलन सब में बदलाव हमें बोलेंगे सब में बदलाव इन नम्मे नामे मरुपरिचने के दिन अपने आप को जांच कर देखने का दिन है हालेलुया ना अपा ने इवड़ा नेरिंग करे मैं कितना प्रभु के नजदीक में हूँ मैं कितना दूर हूँ कितना लोग बोलते हैं दिल की गहराई से इतने लोग सुन रही है कितने लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु के नजदीक में हूँ हालेलुया पापा पिता करके बोलते हैं लेकिन मैं क्या मैं उसका करीब आए मैं निकट है क्या मैं उसके कंधे पे हाथ डाल के जा सकता हूँ अरे नहीं तो वो परमेश्वर में दूर से उसके प्रणाम करके निकल जाता हूँ हालेलुया हालेलुया कैसे बोल रहे हो हमें बोलेंगे हालेलुया वो मेरा पिता है वो मेरा डैडी है हालेलुया डैडी बच्चे का कंधे पे हाथ डाल के चलता है बच्चा भी प्रभु डैडी का हाथ कंधे पे हाथ डाल के जाता है लेकिन जब परमेश्वर प्रभु में हम लोग आते हैं भवन में वो परमेश्वर है हालेलुया हालेलुया मैं उनका प्रजा है हमें बोलेंगे कलीसिया में वो परमेश्वर है हमें बोलेंगे मैं प्रजा है हालेलुया मेरे घर में वो डैडी है मैं कंधे पे हाथ डालूंगा प्रभु डैडी से बात करूंगा प्रभु डैडी बोलेगा प्रभु तू इस प्रकार चलने का उस प्रकार चलेगा अच्छी तरह से चलने का आज्ञा देगा हालेलुया योजना देगा सारा आज्ञा देगा लेकिन जब भवन में हम आते हैं वो परमेश्वर आकाश और धरती को बनाया हुआ है हालेलुया वो विचार पर आएंगे तो हम हालेलुया हमारे कदम पीछे नहीं रहेंगे प्रभु के भवन में आगे कदम रखेंगे हालेलुया इस प्रकार हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे तो नया सृष्टि बनेंगे हमारा कदम पीछे नहीं रहेगी आगे रहेगी हमें बोलेंगे मेरा इन्होंने काल में पिन्नल और लोग मुंदर नड़को इन कलगले कुछ नड़ते रहो मेरा हाथ अगर ताम कर चलाने वाला वही है इन्होंने नीचे मदद करते हुए नड़ते हुए सुना मेरे धार्मिकता के हाथों से तुझे चलाएगा हालेलुया उस परमेश्वर को आराधना करने के लिए उस परमेश्वर को वचन सुनने के लिए उस परमेश्वर को नया सृष्टि बन के लिए आए हैं अपने आप को जांच के देखो इंదులో మారడానికి ఎప్పుడు चले वायकरण चले आंदोलन ने मार्चो आवियारों ने मार्चुआ आत्मा जिसमें बदलेंगे अभिषेक से बदलेंगे अग्नि से बदलेंगे थोड़ा सोच विचार सब बदल जाएगा हालेलुया प्रभु कितना अच्छा करके तो चक्के देखेगा ना हालेलुया तेरे जीवन में कभी हार नहीं जीत होती रहेगी हम बोलेंगे तेरे जीवन में हार नहीं जीत होती रहेगी हालेलुया வாழ்க்கை எப்போ வெற்றியே அவர் நல்லவர் இயேசு நல்லவர் ருசித்து பாருங்க हालेलुया அவர் நம்பிக்கை படுற பாக்கியவான் வேதம் சொல்கிறது அந்த பாக்கியத்தினால கர்த்தர் தருவாராக ऊपर को दरबारा वो भाग्य हर दिन प्रभु आपको देते रहेगा प्रभु यीशु कितना अच्छा कर चक्कर देखो उसमें जो भरोसा करता है वो भाग्य है करके प्रभु का वचन कहता है हालेलुया हमें बोलेंगे सब हालेलुया धन्यवाद बोलेंगे सब धन्यवाद बोलेंगे अभी धन्यवाद प्रभु आपके पास के धन्यवाद कितना बोलते हैं धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु आपके वचन में धन्यवाद प्रभु नया सृष्टि बना दो प्रभु नया सोच विचार आने दो प्रभु आपके मगन होने दो प्रभु हालेलुया आपके आनंद होने दो संतोष होने दो मेरे परिवार को आनंद होने दो बोलेंगे मेरे परिवार को आनंद होने दो मीठा संतोष उंडागट्टू अंटारे महीழ்ச்சி உண்டாகட்டும் உங்க அடிக்கிற வளரட்டும் अनुदिनமும் வளரட்டும் வந்து ஒரு நாளைக்கு மட்டும் இல்ல अनुदिनமும் हर दिन में बढ़ना हर दिन बढ़ना यीशु के नाम से हर दिन बढ़ना लोड बना है यीशु के नाम में जब भी अल्लाह पिता
आमीन।